Okay. So first of all, Sarfaraz, सर congrats. सर एक सेकेंड हम्म, ये फिर थोड़ा सा हो गया इसको। हम्म, ओके Excuse. सर। ठीक है. चलिए. So पहली बात यार, सरफराज, congratulations and welcome to थैंक यू Margdarshan सर। Ideas. थैंक यू सर। So uh, this we have seen your DAF which you have sent. So could you please go through with your DAF and introduce to the board that who is Sarfaraz and why you want to become a civil servant? Good evening, sir. My name is Mohammad Sarfraz Chaudhary. I'm 25 years old and belonging to district Jammu and Kashmir. I have done my schooling from Army Public School in Jammu, and after which I did my graduation from Government Gandhi Memorial Science College in Jammu itself. I am holding a master's degree in zoology from Jammu University, and since 2023, I have engaged myself in the preparation for civil services. My areas of interest are watching movies and knowing about the affairs of global importance. Sir, with regards to civil services, it was always in the back of my mind regarding some administration, regarding involvement in administration. Hmm. But I got some indirect exposure during my college days from friends and seniors that deepened my interest. Okay. I want to become civil servant to serve my society. And sir, I think that civil services can provide me with adequate institutional authority where I can fulfill my objective. And furthermore, sir, I believe that it also provides diverse experiences that can be an opportunity for me to live and lead in life. Yes, sir. Okay. Okay. Uh, ठीक है सरफराज. So we have your education qualification where majority, I think 10th and 12th you have done from army school and then graduation in botany, zoology and all, right? Yes, sir. So could you please tell me that being a science student and you have very good diverse background of altogether in science stream. Yes, sir. So can you tell me about what are the, I mean, you must be aware of gene sequencing, right? Yes, sir. Gene sequencing. तो ये gene sequencing होती क्या है? सर, जीन सीक्वेंसिंग बेसिकली हम जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में इसको पढ़ते हैं। हम्म. सर, इसका जीन सीक्वेंसिंग इज बेसिकली द मेथड थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट द सीक्वेंस ऑफ जीन्स। दैट इज कि डीएनए में कौन सा सेगमेंट किसके बाद आता है। सर, इससे हमें एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी मिल जाता है डीएनए का, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनल फ्रॉम फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑल्सो बिकॉज इट्स after all it's the location of the gene, and by what genes are surrounding a particular gene that its function is depending on. ठीक है. कैन यू टेल मी दैट कि इंडिया किस किस जेनेटिक प्रॉब्लम के डिसऑर्डर से फेस अभी चल रही है? आई मीन व्हाट आर द टॉप 2 or 3 जेनेटिक डिसऑर्डर इंडिया इज गोइंग थ्रू? Sir, top two genetic disorders, I think first would be sickle cell anemia. It's quite prevalent in India, and it's a disorder that's related to destructuring of the hemoglobin and sickling of the RBCs. ठीक है. And secondly, sir, second disease would be G6PD deficiency. It's an enzyme in the body. Its deficiency is related to genetics only. ठीक है. कुड यू प्लीज टेल मी, ये सिकल सेल एनीमिया आपने बताया, तो क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर रही है? Yes, sir. Sir, recently government has introduced an elimination program for sickle cell anemia with its deadline set by 2030. ओके. Yes, sir. आपने नाम सुना होगा ना, क्रिस्पर, क्रिस्पर कास 9. Yes, sir. तो डू यू थिंक कि इसका कोई एथिकल कंसर्न भी है? मतलब ये रैशनल वे में इसको यूज़ किया जा रहा है या फिर किस तरीके से इसको आप देख सकते हो क्रिस्पर कास 9 को? ऑल्सो साथ में मुझे एक और इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि इंडिया के पास कोई अपनी जीन एडिटिंग टूल है कि नहीं? सर, क्रिस्पर कैस9 को अगर हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो वो एक बहुत ही यूजफुल और एक पावरफुल बायोटेक्नोलॉजिकल टूल है। उसका बेसिकली इट इज फेमस फॉर ओनली वन थिंग, एंड दैट इज द टारगेटेड जीन एडिटिंग। हम्म. तो उससे कोलैटरल डैमेज जो बाकी डीएनए को होता है दैट इज प्रिवेंटेबल बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। हम्म. एंड सर,
talking about the ethical concerns related to the use of this technology, obviously there is a potential that it can be ethically misused हम्म। because अगर हम एक टारगेटेड जीन एडिटिंग करेंगे तो देर आर चांसेस कि हम जीन्स को लेकर थोड़े वी कैन बिकम चूजी फॉर द जीन्स और एंड जीन्स इन टर्न आर इन्फ्लुएंसिंग द मॉर्फोलॉजी। तो जो बॉडी के फीचर्स हैं उनको हम सिलेक्ट करने शुरू हो जाएंगे एंड इससे फिर एक इनडायरेक्टली डिजाइनर बेबीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज हो सकता है जो अभी लॉफुली कहीं भी अलाउड नहीं है। ठीक एंड है। सर, यस सर। ठीक है, मुझे बताइए इंडिया में ये क्रिस्पर कासनेर कहाँ की टेक्नोलॉजी है? पार्डन मी सर, मुझे समझ नहीं आई। कि टेक्नोलॉजी जो क्रिस्पर है वो कहाँ की यस सर, टेक्नोलॉजी है? विच विच कंट्रीज टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग? क्रिस्पर कासनाइन कहाँ की टेक्नोलॉजी है? आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट। इंडिया के पास कुछ ऐसा है खुद का इंडिजीनियस जीन एडिटिंग टूल? सर आई डोंट नो, ओके। ये नहीं पता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद फिर सर के पास हम लोग चलेंगे। ओके सर। सो आप मुझे ये बताइए दैट आपने आपका एनिमल फिजियोलॉजी आपने लिया है इन योर एमएससी, यस राइट? सर। सो एक अच्छा खासा हमें आपका साइंस ओरिएंटेशन बैकग्राउंड दिख रहा है। जी सो सर। व्हाट इज एनिमल फिजियोलॉजी? और मुझे बताइए कि स्टेटस क्या है इंडिया में अभी लाइफ स्टॉक्स का, मतलब क्या चैलेंजेस हैं लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, और एनिमल फिजियोलॉजी क्या होती है? Sir, animal physiology is one of the most prominent and emerging fields in zoology, हम्म। even in research work. हम्म। इट एनिमल फिजियोलॉजी सर बेसिकली होता है जब हम एनिमल की इंटरनल बॉडी की जो उसकी अनेटमी है, हाउ इट वर्क्स, उसकी फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट इज फिजियोलॉजी एंड इट इज वेरी मच लिंक्ड टू इट्स आउटर मॉर्फोलॉजिकल फंक्शंस आल्सो। हम्म। Yes, sir. And with regards to the livestock in India, India जो है sir is a leading milk producer. Basically, when we talk about the bovine animals, cattle, so we are having one of the largest populations of cattle in India. चैलेंजेस क्या है? And सर challenges particularly जो livestock को लेकर है, first of all the disease that is on the rise. What And what sir, what kind of disease coming from livestock? सर जूनोटिक डिजीजेस अभी जो है काफी राइज पर हैं। तो Okay. उससे जो एंड पीपल हु आर हैंडलिंग दीज लाइफ स्टॉक दे आर एट द फ्रंट लाइन रिस्क। Okay. एंड एंड सेकेंडली सर लो yield in milk, that's probably because of some inbreeding depression and various other scientific reasons behind that. ओके। ओके। और कोई चैलेंजेस आपको लगते हैं कुछ इनपुट आउटपुट से रिलेटेड? एनी चैलेंजेस यू फील? Yes, sir. Sir, one more challenge that I think is prominent right now, and that is, sir, the linkage of this sector with other sectors. Like, sir, अगर हम milk की बात करते हैं, तो we need to connect it with other industries. We need technologies like purification. तो वो industrial linkage जो है, sir, that is not up to the mark. That is one another challenge. ठीक है, एक एक लास्ट है, क्या कोई गवर्नमेंट की स्कीम है लाइफ स्टॉक्स को प्रमोट करने के लिए? Yes, sir. हम्म। Sir, Rashtriya Gokul mission is there, हम्म। as well as a national vector-borne disease control program is also there for eliminating livestock diseases. ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। राजेश सर? जी। ये आपकी जो है हाई स्कूल और इंटर 10th और 12th जो है ये आर्मी स्कूल से हुई है, जी सर। तो क्या आपने एनडीए या सीडीएस नहीं अप्लाई किया या प्रयास नहीं किया? जी सर, अप्लाई नहीं किया। आर्मी स्कूल का तो बैकग्राउंड ज्यादातर वहीं शुरू होता है, यस सर। लगभग 70-80% लोग एनडीए जाते हैं। जी। तो आपने प्रयास नहीं किया? नहीं सर। अच्छा, आर्मी स्कूल में फिर ज्वाइन करने का क्या मतलब था आपका? आर्मी स्कूल ही क्यों, मतलब स्कूलिंग के लिए क्यों आपने चुना, या आपके गार्जियन ने सर उसको मेरे दिया, क्या पेरेंट्स बात ने है? आर्मी स्कूल चूज किया, प्रोबेबली उसके पीछे रीजन सर डेकोरम एंड डिसिप्लिन का एक रीजन है। जी सर। अच्छा, बहुत बड़ा। अच्छा, जम्मू कश्मीर से हैं आप? जी सर।
जी सर जम्मू कश्मीर में बहुत पर्यटन स्थल हैं। जैसे एक प्रोमिनेंट जो है सर, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन है। सर जी। दूसरा, यहाँ पर कई सारे फोर्ट्स हैं, जैसे बाहू फोर्ट, अखनूर फोर्ट है। हम्म। सर यहाँ पर सुरिनसर मानसर लेक है, जो कि एक रामसार साइट है, 2005 में डिक्लेयर किया गया था, वो जी। भी है। और सर कश्मीर में काफी सारे पार्क्स हैं मुगल हम्म। आर्किटेक्चर को जो डिपिक्ट करते हैं। चश्मा शाही, निशात बाग। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, वहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट श्राइन्स भी हैं, हजरत बल, लाइक दैट। अच्छा, ये जो अभी पहलगांव था, पहलगांव किस लिए मशहूर है, जहाँ अभी कुछ आतंकी घटनाएं हुई थी? पहलगांव। सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, सॉरी सर। पहलगाम के प्रसिद्धि का क्यों जाते हैं लोग वहां पर्यटन करने? सर पहलगाम लोग की इसलिए फेमस है सर, क्योंकि उसका लैंडस्केप की वजह से, उसकी ब्यूटी की वजह से, बिकॉज वो एक बेसारन वैली में सिचुएटेड है, अनंतनाग में। तो वहाँ का लैंडस्केप प्लस सर वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही सूदिंग है, इसलिए लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। ये पारी महल कहाँ स्थित है? नाम सुना है आपने? जी सर, नाम सुना है। कहाँ है ये? क्यों मशहूर है पारी महल? सर ये सर परी महल श्रीनगर में स्थित है। परी नाम है या पारी? सर पारी बोला जाता है, पारी जी। पारी महल। सर लेकिन तो प्रसिद्धि का मुझे अंदाजा नहीं है सर। कोई बात नहीं। आपके जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला सर किश्तवाड़। एरिया या पॉपुलेशन? सर एरिया वाइज। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सर जम्मू। एग्रीकल्चर के मतलब प्रोडक्शन में क्या क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या क्या पैदावार होती है? सर जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से हर ऑलमोस्ट हर राबी क्रॉप जो है वो उगाई जाती है। जैसे वीट हो गई, वीट हो गई सर। उसके बाद यहाँ पर खरीफ क्रॉप भी उगाई जाती है, जैसे आरएसपुरा या कठुआ जैसे जिले जहाँ पर पानी काफी ज्यादा है, तो हम्म। यहाँ पर पैडी की भी उपज ठीक होती है। सर उसके अलावा यहाँ पर कश्मीर वाली साइड में सर सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है, वॉलनट की कल्टीवेशन की जाती है, और हॉर्टिकल्चर भी सर यहाँ पर काफी इंक्रीज में है, ये जिसमें एप्पल वगैरह का ज्यादा उत्पादन? यस सर। सबसे ज्यादा किस मामले में मशहूर है, या किस खेती के मामले में किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है? किसके लिए प्रसिद्धि है जम्मू की, जम्मू कश्मीर की? सर जम्मू कश्मीर की प्रसिद्धि सर मेरे अंदाजे से सैफरॉन और एप्पल की वजह से सबसे ज्यादा है। सेफ्रॉन मतलब जो केसर बोलते हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक महोत्सव होता है वहाँ, शिकारा, शिकारा महोत्सव, नाम सुना है आपने? जानते होंगे। सर शिकारा का नाम सुना है, महोत्सव का नहीं पता शिकारा उसके साथ। महोत्सव, शिकारा किसे कहते हैं, क्या सर है? शिकारा, सर शिकारा वो लाइफ बोट टाइप होती है जो डल जो में। डल झील में, तो वहीं जी उसका महोत्सव भी मनाया जाता है, शिकारा महोत्सव। जी सर। अच्छा, कश्मीर का पुराना नाम क्या था, किस ऋषि के नाम पर पड़ा है नाम, कुछ आइडिया है आपको? यस सर। सर कश्मीर का नाम जो था वो कश्यपपुरा था पहले, तो यस सर। ये कोई ऋषि थे? यस सर ऋषि थे, मुझे क्या अभी नाम? उनका नाम। कश्यप। सर कश्यप ऋषि, ऋषि कश्यप। यस सर। ठीक है। ठीक है सिद्धार्थ जी, जम्मू कश्मीर के विषय में तो इनसे हमने पूछ लिया, ठीक और है। आप पूछ लें, फिर उसके बाद करंट टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सो सरफराज, आपका मैं हॉबीज में देख रहा हूँ। सो यस सर। काफ़ी डाइवर्सिटी है, लाइक आप स्प्रिंटिंग में भी थे, देन यू वर हाउस कैप्टन एज वेल, और प्राइजेस और मेडल स्कॉलरशिप ये बिल्कुल इंटरलिंक करता है जो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है। इससे ये क्लियर है कि आपका क्लैरिटी सब्जेक्ट्स को लेकर काफ़ी अच्छी है, और ऑप्शन भी मेरे ख्याल से आपने एंथ्रोपोलॉजी इसीलिए लिया होगा, क्यों? यस सर। ठीक है। सो मुझे आप ये बताएं, आपने अपने हॉबी में लिखा है कि वॉचिंग मूवीज बेस्ड ऑन साइंस फिक्शन। जी सो सर। कैन यू टेल मी दैट, आई मीन नेम वन साइंस फिक्शन मूवी दैट मेड यू थिंक डीपली, या फिर लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने साईफाई? सर लास्ट साइंस फिक्शन मूवी मैंने अभी रिसेंटली आई थी, फ्रैंकेनस्टाइन, वो देखी थी सर।
अच्छा, क्या था उसमें, मतलब स्टोरी क्या थी और क्यों आपको इतनी पसंद है साई-फाई मूवीज? सर उसकी स्टोरी में दरअसल वो अलग मुझे इसलिए लगी क्योंकि उसमें सर एक इंसान के हाथ में जन्म देना है या नहीं उसके ऊपर चर्चा की गई थी। तो उसमें सर एक इंसान था, तो उसने अपने एफर्ट से ही गिव्स लाइफ टू अनदर मैन। वो असेंबल करता है different body parts from different persons, and then somehow he puts life into that person. But later on sir, he is not able to emotionally grow that person or teach him well. हम्म। तो वो उसके रिलेटेड सर स्टोरी थी। एंड सर साइंस फिक्शन में मुझे इंटरेस्ट एंड सर साइंस फिक्शन में मुझे इंटरेस्ट इसलिए है बिकॉज सर आई थिंक इट improves our imagination, stimulates critical thinking, and most importantly sir, I think it's a very versatile genre. It connects storytelling with scientific logic, so any person who is watching a science fiction movie can deduce scientific logic while at the same time he can enjoy the story also. That's why I like these type of movies. Okay, so tell me that if someone is, or maybe a group or a country or anybody relying excessive, मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम एक्सेसिव रिलाई कर रहे हैं, तो क्या ह्यूमैनिटी के लिए ये क्या डेंजर नहीं हो सकता है? या फिर हम, मतलब आप उसको किस तरीके से देख सकते हैं? ओवर रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी, डोंट यू थिंक इट्स डेंजर टू ह्यूमैनिटी? Sir, over relying on technology has its own benefits and as well as concerns. बताइए। Definitely, sir, there is a thin line difference, and the pace at which we are currently utilizing technology, I think we may not be able to assess that when we cross that line. Sir, benefits of technology are in various regards to various sectors. हम्म। लाइक सर मेडिकल में बहुत इसका बेनिफिट है, स्पेस टेक्नोलॉजी में है, डीप सी रिसर्च में इसका बहुत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, कम्युनिकेशन में है, इंफॉर्मेशन होल्ड करने में है लाइक बिग डाटा। बट सर अगर हम ओवर इस पर ओवर रिलायंस करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो सर उससे फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमारे मैनकाइंड में सर काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे सर फर्स्ट फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं दे विल स्टार्ट ग्रोइंग बिकॉज अल्टीमेटली मैन विल बिकम लेथार्जिक। like abhi we can see this very prominently as people are shifting from theatrical experiences to OTT platforms. Sir, second issue is that communication gap, because attention gap deficit create हो जाता है। तो उससे कम्युनिकेशन गैप जो क्रिएट होता है सर दो लोगों के बीच में, सो बिकॉज वो मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर दे आर कम्युनिकेटिंग, एंड द एक्सप्रेशन behind the text may not be fully understood, and there are high chances of misunderstanding. So definitely over use of technology has great misadvantages. ठीक है। मुझे ये बताइए, लास्ट टाइम कोई एक इंसिडेंट जिससे आप बहुत हर्ट हुए थे? Yes sir. सर लास्ट टाइम इंसिडेंट जिससे हर्ट हुआ था सर, एक रिसेंटली एग्जाम था जोलॉजी लेक्चरर का, मेरे ही सब्जेक्ट का एग्जाम था। तो आई वाज होपिंग कि आई कुड गेट थ्रू इट, बट सर आई डिडंट मेक इट। तो उससे मैं काफी हर्ट हुआ था। हाउ डिड यू ओवरकम? सर पेरेंटल सपोर्ट, दे मोटिवेटेड मी, and sir, I think I used bit of emotional intelligence that I have acquired through long process of civil service preparation, तो वो भी मैंने थोड़ी सी यूज की। इट्स जस्ट यस सर। आपके एकेडमिक्स जो हैं वो ये दिखाते हैं कि आपने काफ़ी आर्मी पब्लिक स्कूल से भी थे और अच्छे खासे आप कॉलेज से भी हैं, एक गुड फैमिली बैकग्राउंड, तो डिसिप्लिन, मैच्योरिटी, पेशेंस और ऑनेस्टी वो दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके इस पूरे डैफ में। और तो मुझे ये बताइए कि अगर आप इन केस बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद इफ़ यू आर consistently failing, not qualifying, then how will you cope up with this? We have seen a lot of candidates जो कि फेलियर बर्दाश्त नहीं हो पाता है, कमिंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड नहीं बर्दाश्त हो पाता है। सो इन केस आप बताइए कि हाउ विल यू राइज अप, हाउ विल यू हैव दैट गुड कम बैक?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डायग्नोज कि मैं अपनी जर्नी में किस पोजीशन पर हूँ. इफ आई एम in between my journey and still I am having some attempts, so I will keep on attempting for that exam हम्म, with full dedication and compassion. Sir, हम्म, suppose if it's my last attempt and I have no chances left and I fail in the exam, then sir, I would sincerely accept this, that I prepared well and I have grown immensely through this journey. And sir, then I would channelize all my skills and whatever I have learned to some other avenues of welfare where I can fulfill my ultimate objective of serving the society. And most probably, I ठीक। will be looking for some other profession. मुझे ये बताएं कि आप आपको सर्विस मिल गई है और आप पोस्टेड हैं, मान लीजिए कि आप जम्मू में ही पोस्टेड हैं, और यू आर लेट्स से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देयर। आपके अंडर में एक ऐसे एसडीएम आते हैं जो कि ही इज़ मोर स्किल्ड देन यू, ही इज़ मोर एजुकेटेड देन यू, और उनकी लोकप्रियता आपसे ज़्यादा है। हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन अगर आपका जूनियर आपसे मोर कॉम्पिटेंट है, ज़्यादा कॉम्पिटेंट है? Sir, that would be a very good thing for me. I will utilize his experience, his knowledge, because ultimately it's all about teamwork in within a department, and it's the progress of the department that his knowledge would be contributing to. अच्छा, Yes, sir. जस्टिस किसको कहेंगे कि अगर हम सच बोलें या फिर चुप रहें? सर वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है. कभी सच बोलना भी जस्टिस होता है, कभी चुप रहना भी जस्टिस होता है. अपनी लाइफ से कोई इंसिडेंट बता सकते हैं? सर सॉरी, अभी ऐसे एकदम से याद नहीं आ रहा कुछ. ठीक है, एक और सवाल मेरा रहेगा। आपने पूछा, आपने लिखा हुआ है यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट इन अफेयर्स ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस, राइट? Yes, sir. सो जनरल अफेयर्स में आप मुझे जस्ट टेल मी करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड नेपाल की जो सिचुएशन अभी हुई है, राइट, जो नेपाल की सिचुएशन हुई है। सो हाउ डज इट अफेक्ट इंडिया? जो अभी एक टर्मोइल हुआ है, जेंजी प्रोटेस्ट हुए थे वहाँ पे, तो क्या इंडिया को कुछ फर्क पड़ा है या फिर इट्स जस्ट कुछ नहीं, कुछ था नहीं? सर नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे, सर उससे डेफिनेटली इंडिया को अफेक्ट तो है, हम्म, होता है सर. इकोनॉमिकली भी अफेक्ट होता है, बिकॉज नेपाल के साथ हम वी शेयर अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर. हम्म, ट्रेड डिसरप्शंस हो सकती है व्हेन देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ गवर्नमेंट. हम्म, Sir, secondly, it can also impact cultural exchanges between the people of Nepal हम्म, lying close to the border of India. And sir, India पे impact है, and India can cope up with this situation by revising the Indo-Nepal treaty. हम्म, And India should also resist the temptation that political personality of equating political personality with state stability, because Nepal में कई सारी prime ministers within a very short span of time change हुए थे. So India should equate state stability with cultural vibrancy and democratic representation. और सर इंडिया एक और काम इसमें ये कर सकता है कि इंडिया शुड एंगेज विद यंग इमर्जिंग लीडर्स बियॉन्ड काठमांडू. यस सर. ठीक है, ठीक है। माय वन लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यस सर. बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यू आर पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन जम्मू, यू आर अ डी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देयर, और वहाँ पे कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि ब्रिज बनाना चाहती हैं विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, और उनको क्लियरेंस में दिक्कत आ रही है, यू नो कि, और वो ब्रिज बनाना भी ज़रूरी है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर, देन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब भी है, और एक तरफ से है हमारा एनवायरनमेंट भी है, वहाँ की लोकल कम्युनिटी भी है, एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन बिकॉज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का सबसे बड़ा रोल है। व्हाट वुड यू प्रेफर? आप क्या उसको क्लियरेंस में मदद करेंगे? व्हाट वाज योर रोल, क्या रहेगा? Sir, first of all, I would take input from the company, that what is the company's stand regarding it, and secondly the input from the communities that are affected, that their stand I need to know. Sir,
Secondly, I would initiate a dialogue, try to initiate a dialogue with the community leaders as well as the company, bringing them on the same table. And at the same time, sir, I would continue to be in contact with the upper administration or the government, that what all progress is happening there. And sir, I will try to look for a middle way. Yes, sir. ठीक है सर, मेरा डन, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सरफराज, ये बताइए, जम्मू जी सर। कश्मीर के अंतिम महाराज कौन थे विलय के पहले? सर, जम्मू कश्मीर के अंतिम महाराज श्री महाराज हरि सिंह जी थे। अच्छा, विलय कब हुआ था, कुछ याद है आपको, डेट वगैरह? सर विलय मतलब एक्सेशन। जी, भारत रियासत में उनके, जम्मू कश्मीर रियासत थी पहले, जी सर। बाद में वो भारत का हिस्सा बनी, तो ये कब हुआ था? हरि सिंह ने सर, कब? जी सर ये 26 और 27 अक्टूबर को हुआ था। यस सर। 19 सर 1948 सर, 47 47 जी, ठीक है। अच्छा, अभी ये 370 खत्म कब हुआ है? धारा 370 जो स्पेशल धारा जोड़ी थी, तो उसको भी संसद ने खत्म किया है, और कब, किस सन में खत्म हुआ? सर वो 5 अगस्त 2019 को खत्म की गई थी। इसका आपकी दृष्टि में क्या प्रभाव पड़ा है जम्मू कश्मीर पर? सर मेरी दृष्टि में इसकी वजह से सर बहुत ही पॉजिटिव एक प्रभाव पड़ा है जम्मू कश्मीर पर। इससे एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव लिंकेज जम्मू कश्मीर को मिली है। जैसे सेंटर की कई सारी स्कीम्स थी, जैसे राइट टू एजुकेशन, वो अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होती हैं। सर दूसरा, यहाँ पर ज्यादा इंटीग्रेशन की वजह से कई सारी प्राइवेट कंपनीज भी अब आ रही हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेल प्रोजेक्ट जो है वो अब काफी स्पीड पे डेवलप हो रहे हैं। और लास्टली सर, लाइन ऑर्डर की क्या स्थिति है खत्म होने की वजह से, 370 समाप्त होने के बाद से? सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी कंट्रोल में है। हालांकि सोशल और पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज जो हैं वो टाइम टू टाइम एमर्ज होती रहती हैं। रादर जैसे टेरर मॉड्यूल्स जो हैं उनका भी अब थोड़ा मॉडस ऑपरेंडी थोड़ा चेंज हो गया, बट सर इंस्टांसेस आर ऑन द डिक्लाइन। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो पॉजिटिव है। यस सर। 370 का खत्म होना। जी और सर। जो बीच बीच में जो राजनीतिक लोग विरोध करते हैं कि लद्दाख अलग कर दिया, ये किया, वो क्या मतलब, उसका क्या आधार है, क्यों करते हैं लोग? सर पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज जो है वो तो रीजन में है ही, और सर उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है। वही है, वही है, Yes. हो सकता है, वही है। ठीक है सर। एमएसपी जानते हैं आप? यस सर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन निर्धारित करता है? सर ये CACM, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। इसका चेयरमैन कौन होता है? सॉरी सर, इसका अंदाजा नहीं है सर मुझे। अच्छा, ये जो मूल्य निर्धारित करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? सर उसका उद्देश्य ये है कि यदि अगर किसान को किसी वजह से सर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाए, तो उसको एक मिनिमम प्राइस की गारंटी तो रहे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इतने में बिकेगा ही बिकेगा, इररिस्पेक्टिव की क्या लॉस हुआ है। और कोई टारगेट और कोई कारण हो सकता है इसका, या है? सर और इसका कारण सर फसलों को सर तरह तरह की फसलों को बढ़ावा देना, किसान एक ही फसल की तरफ ना जाए, बिकॉज इसमें सर 23 क्रॉप्स जो है उनको कवर किया गया है। तो मोनोक्रॉपिंग से दूर होने के लिए भी इसको देखा जा सकता है। इसका एक उद्देश्य स्टॉक मेंटेन करना भी है। ठीक है। हाँ सर। सरकार खरीदती है और जी सर। स्टॉक बना के रखती है, इसका जो किसानों को लाभ मिले और सरकार के पास पर्याप्त अनाज का भंडार हो, वो इसका मेन टारगेट है। ठीक है। अच्छा, अभी बीच में एक चर्चा हुई थी C5 की, नाम सुना था आपने? डोनाल्ड ट्रंप की एक योजना है C5। नहीं सर, इसका C5 का नहीं सुना सर। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, अभी बड़ा चर्चा में है ये ठीक है। G7 के विकल्प के रूप में 5 देशों की एक संगठन बना रहे हैं, जिसमें इंडिया भी है, और इससे इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो महत्व बढ़ रहा है वो दर्शाता है, वो ये चीज है। ठीक है सर। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक आतंकवादी घटना घटी है। यस सर।
वो कुछ यहूदी लोग इकट्ठा थे, वो किस शहर की घटना है, कुछ बता सकते हैं? माफ कीजिएगा सर, मुझे बीच का नाम याद है, मुझे किस शहर में पड़ता है वो नहीं पता सर। क्या था, बीच क्या थी? सर बॉन्डी बीच। अच्छा, वहां क्यों लोग इकट्ठा थे? यहूदी समुदाय के लोग इकट्ठा थे, क्यों थे? सर उसका मुझे अभी मैंने कोई पूरी तरह से सर इसमें देखा नहीं है। कोई त्योहार मनाया? अरे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना है ये। यस सर, एक त्योहार मना रहे थे वो उसी रिलेशन। अब अगर आज या कल आपका इंटरव्यू रहता तो ये आपके माइनस में रहता। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रमुख घटनाएं हैं पेपर पढ़िए। ठीक खास तौर से जिस दिन आपका इंटरव्यू हो जी। उस दिन आप पेपर बढ़िया से 2 दिन 3 दिन बढ़िया से पेपर, खास तौर से जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है इंटरनेशनल स्तर की, उसको तो आप पढ़ के ही जाएंगे। उसमें और डीपली अगर आपको परेशान करना होगा तो पूछेंगे कि उसका नाम बताइए, जो लोग हमलावर थे, कौन हमलावर मारा गया, उसका क्या नाम था। फिर जिसने एक को पकड़ा, वीडियो आई थी, तमाम लोग देखे हैं, एक पकड़ लिया था उसको जी भी, सर। वो भी बाइकार मतलब मोहम्मदन ही है जो दूसरे को पकड़ा है, उसका क्या नाम था, उसको भी बड़ा इनाम उनाम मिल रहा है। तो ये सब चीजें आप टच में रहिए। बाकी ठीक है ठीक सर। है। आपका ड्रेस का सेंस काफी अच्छा है, आप ऐसे ही थैंक मेंटेन रखिएगा। थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी बना लीजिएगा जिस दिन इंटरव्यू हो। अगर क्लीन सेव रहते हो तो क्लीन सेव कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। बाकी ठीक है सर। ठीक है इनका। हम्म। सिद्धार्थ, ठीक। सरफराज, आपका वो फॉर्मल इंटरव्यू थोड़ा खत्म होता है। ठीक है सर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये पिछले 20-25 मिनट का? सर काफी अच्छा था, बहुत ठीक अच्छा है। एक्सपीरियंस था। और आपकी डेट तो भी आई नहीं होगी? नहीं नहीं सर, अभी नहीं आई। ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूशन से आपको क्या फीडबैक मिल रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर जो पैनल इंटरव्यू वाजीराम और रावी में दिया था अभी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने तो कहा कि थोड़ा पोस्चर ठीक करो, शो होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कंपैशन है सर्विस को लेकर। तो वो कहते हैं ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे बैठो। नहीं तो नहीं, ऐसे। बहुत तन के बैठने की जरूरत नहीं है। वहाँ यस सर। आपसे काफी अच्छे लोग, तने लोग रहते हैं। वो बहुत तनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे दब के भी नहीं बैठना है। सामान्य आपका पोस्चर ठीक है, उसमें कहीं से कोई नहीं है। आपका ड्रेस सेंस ठीक है, आप लुकिंग आपकी अच्छी है। बहुत तन ठीक है। के बैठना आपको फिर वो ज्यादा अहम भाव प्रदर्शित करेगा, वो बहुत उचित नहीं है। ठीक है हाँ। सर। और क्या जैसे मिला ये तो एक, चलिए बाकी बता आप। दीजिए ना कि सर आप आईएएस तो बना दीजिए, उसके बाद देखिए कितना तन जाता हूँ। अभी तनने की क्या जरूरत है। और क्या फीडबैक मिला सर आपको सरप्राइज? सर उसके अलावा उन्होंने कहा कि यही थोड़े मतलब नॉलेज गैप उनको दिखे थे, तो उन्होंने कहा और थोड़ा कवर करो ग्लोबल अफेयर्स को, ताकि थोड़े पॉइंट्स जो हैं वो मतलब मिल जाएं बोलने के लिए। तो नॉलेज गैप बोला था उन्होंने, इतना ही था सर। ठीक है। ओवरऑल मतलब हमें काफ़ी अच्छा लगा, आपकी नॉलेज बेस भी ठीक है। नॉलेज बेस अच्छा होना और नॉलेज को प्रेजेंट करना दोनों में अंतर है। मुझे लगता है कि आप और और प्रैक्टिस करिए, मतलब फेस करने को पैनल के लिए। आपको ठीक पता है। बहुत कुछ है, शायद घबरा जा रहे हैं आप उसको बताने में। ठीक है। और कभी कभी कोई आंसर आप बहुत लंबा खींच दे रहे हैं उसको। अम, हमें पता है कि आपको उस बारे में यू नो अबाउट इट, बट अच्छा। मेक इट शॉर्ट। ठीक। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप खुद स्ट्रेच करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोरिंग हो जाता है, और फिर जी कुछ सर। ऐसा अटपटा सा सवाल आएगा कि आप फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है। कुछ सवाल थे जैसे कि आपसे सर ने पूछा शुरू शुरू में, एंड आई एम श्योर दैट यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, कि आपने एनडीए सीडीएस के लिए ट्राई नहीं किया। नहीं सर, ये नहीं मैंने सोचा था, ठीक बिल्कुल है। भी नहीं। सो नहीं, आपका चूंकि स्कूलिंग आर्मी हाँ। स्कूल से है, जी जी। और बड़ा मतलब स्पष्ट बता दें कि आपके यूपीएससी में आर्मी स्कूल बैकग्राउंड के बहुत कम लोग आते हैं। हम्म। ठीक है सर, आते हैं लेकिन संख्या कम रहती है। और जो आपके सीडीएस या एनडीए के जो भी भर्तियां होती हैं एसएसबी में, वहाँ 80 से 90% आर्मी स्कूल का ही बैकग्राउंड होता है। हाँ सर। सीडीएस में तो कम हो सकता है, लेकिन एनडीए में तो पक्का है 90% वही रहते हैं। तो कोई बात नहीं, मतलब नहीं पता है, नहीं नहीं आपने प्रयास किया, कोई दिक्कत नहीं। बट यू फ्रेम एन आंसर, फ्रेम, आप एक टेम्पलेट बना लीजिए कि माफ कीजिए सर, कभी इस बारे में रुझान नहीं हुआ, कभी सोचा नहीं, कभी हाँ इस एंगल से उसको देखा नहीं। ठीक है। और जैसे आपने सर से दूसरा सवाल फिर पूछा आपसे कि ये एडमिशन आर्मी पब्लिक स्कूल क्या था। ठीक है।
तो वो उसमें भी थोड़ा सा आपको बहुत ही थोड़ा सा शुगरी आपको कोट करना था कि माता पिता की इच्छा थी कि मैं आर्मी स्कूल पब्लिक स्कूल से पढूं, वो उनकी रुचि थी, और फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरा स्कूलिंग काफ़ी अच्छी हुई, डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा हुआ, बहुत कुछ सीखा उससे, जो कि आपने बोला भी था। लेकिन Yes, sir. शुरुआत में ऐसा लगा कि मतलब आपने अपने पेरेंट्स के ऊपर डाल दिया कि अरे वो तो उन्होंने डाल ही दिया है। Yes, sir. ठीक, तो ऐसे बिकॉज इट्स not a lot of people get an opportunity to study in army school, ये आपको भी पता है। तो जी सर। और वहाँ पे आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, ये सब मेंटेन रहती है। ठीक है, तो सब लोगों को मौका नहीं मिलता है भाई वहाँ पे जाने का। ठीक। अच्छा, मैंने जी आपसे क्योंकि आपका बैकग्राउंड है जूलॉजी में, बॉटनी में, तो मैंने आपसे बहुत ही सुपरफिशियल लेवल का क्वेश्चन पूछा था जीन सीक्वेंसिंग का। ठीक है। ऑल्दो यू आंसर्ड करेक्टली, बट आपको ये क्रिस्पर कास9 और इंडिया ने, ये करंट अफेयर की न्यूज़ है, रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च्ड अपनी इंडिजीनियस जीन एडिटिंग टूल। ठीक है, सर्च ठीक है कीजिएगा सर। इसको, और क्योंकि ठीक। आपका बैकग्राउंड है, क्वेश्चंस कैन कम। ओके, जी सर। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आपका ऑफ कोर्स वो बैकग्राउंड है, और आपने लिखा भी है अपने हॉबीज में भी जो प्राइज मेडल्स आपको मिले हुए हैं। ठीक है, सो एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पैनलिस्ट को दो दो जगह दिखेगा यार, अवार्ड भी मिल चुका है इसको। ठीक है, बाकी मुझे जब सर ने पूछा था आपसे उसके बारे में, पारी महल के बारे में, तो वहां पे भी शायद आप कंफ्यूज हो गए थे कि है क्या, परी है पारी है। तो जब भी आपको कोई नया सवाल आ रहा है तो शायद आप थोड़े से कि अरे यार ये क्या पूछ दिया, मेरे पास जवाब रेडी नहीं है, तो एक टेम्पलेट बना लीजिए। ठीक है, जवाब नहीं है को क्या बोलना है, कंफ्यूज है तो क्या बोलना है। जैसे हम लोग मेंस आंसर में इंट्रो कंक्लूजन का टेम्पलेट बनाते हैं ना, Yes, sir. है ना, एक बना हाँ लेते हाँ हैं, सर। यहाँ पर जी भी जी। आप बनाइएगा। ठीक ठीक है, है सर। और मेरे ख्याल से तो ठीक है, और कुछ सर है कोई फीडबैक इनके लिए? नहीं, बस वही कि पहले से तय रहे कि आपको क्या कहना है। ठीक है सर। जी। वहां आप सोचने में मतलब 1 सेकंड से ज्यादा आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप तुरंत उसका जवाब दें कि सॉरी सर, बहुत जानकारी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप जम्मू कश्मीर के हैं तो जम्मू कश्मीर के इन चीज से आपको जानकारी हो, या आपने जी। एंथ्रोपोलॉजी पेपर रखा है तो आप एंथ्रोपोलॉजी के विषय में आपको काफी जानकारी हो, ये भी कोई उचित मतलब संभव भी नहीं है। ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। इंटरव्यू का जो मेन टारगेट होता है वो आपको कितना ज्ञान है ये जज करने का नहीं होता है। आप जो जानते हैं उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, जो नहीं जानते हैं उसको आप कैसे बताते हैं, ये इंटरव्यू होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, आप क्या बता रहे हैं, आप ब्लफ तो नहीं दे रहे हैं, या आप कुछ ये तो नहीं सोच के आगे वाले को बेवकूफ बना रहे हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, हम चलो कुछ भी बता दें। ये सब चीजें, जो चीज नहीं आ रही है, जैसा भी सिद्धार्थ ने बताया है, उसके लिए आपको पहले से सोच के रखना होगा। बहुत सी चीजें अटपटांग पूछ जाती है। जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया कि अभी आप बताते कि वो साहब ऑस्ट्रेलिया में जो घटना घटी है वो सिडनी के पास का है मामला, तो आप अच्छा। बताते कि यहूदियों के त्योहार थे, वो त्योहार का नाम हुकुक्का या कुछ ऐसे था। तो फिर जब आप ये बताते तो आपसे पूछा, जब तक आप सिलेंडर नहीं करते तब तक आपसे पूछता, एक ही पॉइंट में पकड़ के फिर उसी में घुसते जाते हैं। फिर आपसे पूछते कि अच्छा वो आतंकवादी का नाम बताइए जिसने हमला किया था। अच्छा जो वो पकड़ा था, फिर कहीं कहीं आपको बोलना पड़ेगा कि सॉरी सर। तो वो किस तरह से आप बोल रहे हैं उसी को जज करना होता है। तो इसकी तैयारी आपको पहले से करनी होगी। एकदम से अचानक से जैसे आपके फेस पे कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए कि अरे तो बड़ी दिक्कत हो गई अब क्या बताऊं। वो दिख जाता है। हम्म। जैसे कोई चीज आपसे पूछी जाती है, जैसे अभी जी जी। सिद्धार्थ बता रहे थे, तो वो 1-2 सेकंड के लिए आपके चेहरे पर भाव आ जाता है कि फंस गए क्या। जबकि आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, ये तो आपको गाइड किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। तो ये सब तैयारी आप दिमाग में मानसिक रूप से अपने तैयार रहिए कि हमको क्या रिएक्ट करना है, कैसे जवाब देना है और क्या जवाब देना है, ये भी आप तैयार रखिए। हम्म। कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि जो खराब लगे या जो माइनस की तरफ जाए। नहीं, बाकी वहां आपको पे जो आपका एक स्पॉन्टेनियस आंसर था जब हमने पूछा था कि रिसेंटली आपको क्या हर्ट हुआ है। हम्म, ठीक है, तो इससे पहले हमारे साथ एक पैनल मतलब कैंडिडेट थे जिनका इंटरव्यू हमने लिया था, तो सेम सवाल मैंने उनसे भी पूछा था, तो उनको कह लगा अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सर ने फिर उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, आप बता सकते हैं कि ये गलती हुई थी ये। तो आपने बहुत अच्छे से उसको, और बहुत
जेन्युइन तरीके से आपने बताया कि नहीं, हाँ भाई। हाँ, इनका इनका आंसर का भी काफी ठोस आधार था कि हम्म। साहब वो एग्जाम नहीं कर पाए हम। अ, और ये जो आपने इमोशन के साथ बताया है ना, वो बहुत जेन्युइन लगा था। मतलब अगर, हम्म, ठीक है, फिर दूसरी चीज जब मैंने पूछा था न्याय वाली बात, तो वो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि चुप रहना न्याय है या फिर सच बोलना न्याय है। नहीं वो भी अच्छा बताया इन्होंने कि हाँ, सिचुएशन की डिमांड क्या है, बिल्कुल उसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर उस केस में एकदम से एग्जाम्पल नहीं ना आ सकती, जैसे आपने पूछा वो एकदम से दिमाग में नहीं आती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब ये आपको वही चेक करने के लिए होता है कि सडनली अगर आपके पास कोई न्यूज़ आती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। ठीक है। ठीक है, यही मान। चेक किया जाता है इंटरव्यू में। हाँ। आपकी जानकारी कितनी है ये तो आपको रिटर्न से क्लियर हो गया है। जी जी। अब आपका ज्ञान नहीं, इंटरव्यू में आपका क्या ज्ञान है ये नहीं चेक होता है। बस ये कि आपका जो ज्ञान है वो कितना सही है और किस तरह से आप उसको, उसका प्रस्तुतिकरण किस तरह से कर रहे हैं, आप उसको प्रेजेंटेशन क्या है, किस तरीके का है, बस उसी पे जाता है। बाकी ठीक है, आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। इंटरव्यू का जब डेट आ जाएगी सरफराज, तो एक एक मर्तबा फिर से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक ठीक है है, सर। ताकि आप एक बार फिर से प्रिपेयर हो जाएं। आपको लगे कि अभी और जरूरत है तो आप दो एक दिन पहले हाँ। मैसेज कर दीजिएगा, थोड़ा ठीक है बहुत सर। आपको और गाइड मिल जाएगी। ठीक है, और कोई सवाल है सरफराज? नहीं सर, और अब क्लियर हो गया। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा ताकि आप भी देखें उसको। और जो ठीक है बॉडी सर। लैंग्वेज थी, जिस तरीके से हम रिप्लाई कर रहे थे, आप रिप्लाई कर रहे थे, तो उससे भी बहुत क्लैरिटी आएगी, सीखने को मिलता है। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, विशिंग यू ऑल द ठीक, बेस्ट सरफराज, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।